name is Ravi Shankar Tiwari and I am from Gazipur. And currently I am pursuing my articleship with OP Bagla and Company in Inter-Auditorium, situated in New Delhi. So this was a brief introduction about myself. Now let's move to the topic of today's presentation. Now imagine, you have to imagine, you all are partners, business partners of a firm. Now your company, your firms wants to launch a new brand product in the market. Product into the market. Okay? So the big question is how it should be done. Dirty mind is so how we should start the launching of product, right? So and how should we formulate the strategy? How should we implement to ensure success? Okay. Before knowing how it should be done, it is very easy to know how it should not be done by learning from others' mistakes. As my friend mentioned it early in his presentation about the Coca-Cola failures, I am still taking over. In 1980, there was stiff competition between Coca-Cola and Pepsi. Pepsi, through its market campaign, shows that customers are preferred. नहीं ले तू देख ले पहले अपने चाचा जी को पढ़ाओ. So Pepsi shows through its market campaign that customers are preferred its sweeter version. Now in response, Coca-Cola decided to compete directly, and it reformulates its existing product Coca-Cola Basic in to create a sweeter version to compete the Pepsi directly. Now what happened now? Within just 79 days, Coca-Cola had to bring back its the older version of the Coca-Cola bag. Their strategy fired back them. Now the winning strategy turned into a disaster. The customers of Coca-Cola started protesting. They were angry. They flooded the company with 40,000 over 40,000 calls and letters for complaints. English समझ नहीं आया, हिंदी बोलो. भाई तेरे से गवाह नहीं सब. Sorry. Okay. So तो क्वेश्चन ये है कि मतलब कोका-कोला ने क्या गलती करी? कोई गेस क्या गलती करी? बॉस आपके हुक्म आ रहे हैं. English book? Okay. So, what mistake did Coca-Cola make? Any volunteer? Anyone to participate? Anyone to take? Pepsi को imitate करने की कोशिश. Exactly. हाँ ठीक है, कह सकते हैं. और any other? Okay, original product से change. हाँ, original product से change हो गया उसका. हाँ, ये भी कह सकते हैं. ठीक है, देखो changes is necessary. अगर तुम मार्केट में तो तुम्हें तो प्रोडक्ट उसको कम्पीट करने कुछ तो करना पड़ेगा, बट कैसे करा उसने वो गलत था. तो उसने क्या गलती करी कोई नहीं बता सकता. मैं हाँ बताओ. उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करी थी, मतलब उसमें नहीं बैठ के मैं देख लूंगा वो देख रहा है. उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी यूज करी थी कि उन्होंने कंपटीटर के आस्किंग अबाउट द कोका-कोला. हाँ आई एम टेलिंग अबाउट So what they did is they bought a lot of products of competitors. उन्होंने उसको बहुत ही बल्क अमाउंट में परचेज करके so that it could not reach to the main public, so they purchased it for themselves. और उसके बाद फिर उसे उन्होंने तोड़ दिए ताकि वो लोगों तक पहुंच ना पाए, और इस तरह से उनकी सप्लाई चेन तोड़ने का ट्राई किया था. This was known to everyone. तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ. बिल्कुल किसी को नहीं पता होगा. ठीक है. So Coca-Cola what they try to do is they try to implement the strategy all at once.
they didn't collect proper feedback from their customers. The approach used by the Coca-Cola named Big Bang Theory. इसमें क्या होता है कि हमको एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और पूरा इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसको. So, ladies and gentlemen, this leads to our today's topic. The name is Logical Incrementalism Theory, introduced by Sir James Brain Quinn. He was an author and professor in America. So, this is a So, what is logical incremental theory? Logical incremental strategy. Hey, yaar, request करो. रवि सर concentrate मत करो तुम अपना. अरे यार तुम उधर बैठी हो तो मैं इधर Concentration गलत है. सर पे concentrate करो. Concentration है. राजन भाई खत्म हो गया. Logical incrementalism theory is a strategy management approach developed by Sir James Brain Quinn. So it emphasizes that a good strategy is built over the time, gradually, step by step, rather than it's just created and implemented all at once. Okay. मुझे पता है समझ नहीं आया. Let me explain this with an example. Okay. Now, suppose again you are planning to climb a mountain. कर लिया सबने? Imagine कर लिया सबने? Now, if you try to climb this mountain all at once, that means आपने चलना स्टार्ट किया और चलते जा रहे हो भाई मर जाऊंगा लेकिन रुकूंगा नहीं. तो ये पॉसिबल है कि हम टॉप तक पहुंच जाए. छोटा पहाड़ हो तो बिल्कुल. लेकिन हम यहाँ सीए कर रहे हैं, इतना बड़ा कोर्स तो छोटा नहीं सोच सकते सर. छोटे बात हिमालय. So now, if you try to climb the mountain all at once, it could be risky. खाई पड़ा है गिर जाओगे. रुको देखो, ठीक है? और overwhelm. So, however, if you try to climb the mountain step by step, ये आप रुकते हो, चीजें असेस करते हो. पीछे मैंने सपोज यहाँ पे ऐसे कर थे या फिर ऐसे पहाड़ थे, मैं ऐसे स्टार्टिंग में चढ़ी थी. फिर अपने आप फर्दर स्ट्रैटेजी को वैसे इवेल्युएट करते हो. ओके, तो आप इवेल्युएट करते हो और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हो और सक्सेस होने के चांसेस ऐसे बढ़ा लेते हो. सिंपली it says that don't try to create a big perfect plan all at once. Instead, take small, well thought out steps. Okay. So, by taking incremental steps, we can ensure the success, reduce the errors, and reduce the failures. Okay. Now, हमने देखा कि कोका कोला ने क्या गलतियां करी थी. अब अगर कोका कोला ने अगर ये थियरी लगाई होती है, इम्प्लीमेंट करी होती और अपने स्ट्रैटेजी को ऐसे इस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है जिस तरीके से ये थियरी कहती है, तो इसको क्या बेनिफिट हो सकती थी? इसको ये बेनिफिट हो सकती थी, reduce the risk. Instead of replacing his original formula entirely, कोका-कोला क्या करनी चाहिए थी? अपने न्यू कोक को एज ए टेस्ट प्रोडक्ट एक सेलेक्टेड मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए थी, जिससे कि क्या अगर कोई भी कस्टमर उसे पसंद नहीं आ रहा है या कुछ चीज़ें उसमें गड़बड़ है, तो वो उसके मेन प्रोडक्ट तो चल ही रहा था साइड बाय साइड. उन्होंने क्या एक्चुअली देखो
क्या करा था उन्होंने, पूरा डिसाइड करा और पूरा जो पहले जो रहा था बिल्कुल स्टॉप कर दिया, बनाना ही बंद कर दिया, और वो पेप्सी को डायरेक्टली कम्पीट करने के लिए उन्होंने स्वीटर वर्जन लॉन्च कर दिया अपने ड्रिंक का। तो ये चीज़ उन्होंने गलत करी। उनको करना क्या चाहिए था, करना ये चाहिए था कि वो प्रोडक्ट उसको ऐसे ही चले दो और नया प्रोडक्ट अलग से निकालो और एक सेलेक्टेड मार्केट में उसको सेल करो, लॉन्च करो एज ए टेस्ट प्रोडक्ट, और जो उससे फीडबैक आए फिर उसको इवैल्यूएट कर देखो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कस्टमर्स का। इससे क्या होता कि जो इनका मेन प्रोडक्ट था, जो मेन बिजनेस था, वो अफेक्ट नहीं होता, इनके प्रॉफिट नहीं गिरते, इनकी रेपुटेशन नहीं खराब होती मार्केट में। ठीक है, नाउ ये तो था पहला वाला। दूसरा, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो रिस्पॉन्स अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देता है, देखो अगर देखो तो अगर हम अगर कोको कोला ने अपने प्रोडक्ट को एक सिलेक्टेड मार्केट में इशू कर, सर आप सुनो, अगर ये आपने कोको कोला अपने प्रोडक्ट को एक सिलेक्टेड मार्केट में लॉन्च करा होता तो क्या होता कि अगर किसी कस्टमर को पसंद नहीं आया, कुछ आता तो फीडबैक आया, तो फिर वो क्या कर सकते थे, आसानी से अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते थे, अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर, या फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस डाल सकते थे, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था और इनका जो साइड बाय साइड मेन बिजनेस था वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता। तो ये एक एग्जांपल हो गया फ्लेक्सिबिलिटी की। थर्ड है आपकी इसकी इंक्रीज शेयर होल्डर्स बाइंग। अब शेयर होल्डर्स कस्टमर्स भी होते हैं हमारे बेसिक, ठीक है। तो अब क्या कि अगर हम इस थियरी में क्या, ये थियरी कहना ये है कि आप कस्टमर को इवॉल्व करो, कैसे, थ्रू फीडबैक्स। अगर हम कस्टमर कनेक्शन रहते हैं थ्रू फीडबैक या कैसे भी, तो एक लॉयल्टी बढ़ती है हमारे मार्केट में, तो इसके थ्रू हम एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल था फेलियर का। नाउ लेट्स मूव टू द सक्सेस। ये सिंबल आई थिंक सबको पता होगा, नाम बता दो सबको। नेटफ्लिक्स। सो ओके, मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि कोई ब्रीफ में नेटफ्लिक्स स्टोरी बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल थोड़ा भी नहीं, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली क्या, ये कंपनी क्या करती थी, डीवीडी कैसेट्स बेचती थी। एम आई राइट? स्टार्टिंग में ये कंपनी क्या डीवीडी कैसेट्स बेचती थी, डीवीडी सीडी डीवीडी वो बेचती थी जैसे। तो फिर उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी इवॉल्व करा और ये लोग स्ट्रीमिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ गए और ये लोग कंटेंट क्रिएट करें वगैरह। और इनका जो पहला था हाउस ऑफ कार्ड, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं। सेकेंड कंपनी अमेजोन। अब ये तो बता दो यार बेसिक, अमेजोन का फर्स्ट हाउ इट स्टार्टेड। बुक सेलर्स 1995। So Amazon started with selling books. Now Amazon selling everything from sui to talwar. Okay, guys. अब ये तो जान लिया ये स्ट्रैटेजी काम मतलब करता क्या। अब ये पता करना बहुत जरूरी है काम कैसे करता है, ताकि हम लोग अपने पर्सनल लाइफ या बिजनेस में भाई पर्सनल ग्रोथ भी नाम की चीज होती है। ये अच्छा ये तुझे गलत लग रहा है, अजब आदमी है यार। ठीक है भाई। तो आपको सबसे पहले एक गोल सेट करना पड़ता है, बहुत बड़ा गोल। अरे भाई ये तो डरती है भाई। मैं तो गोल नहीं किया सर। आप कोई दो वर्ड इनके लिए बोलना चाहते हैं? Set a strategic direction. For example, you want to increase your market share. तो अगर आप अपने कंपनी मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा माइंडसेट होना चाहिए, एक बड़ी गोल होनी चाहिए, राइट। और इस बड़े गोल को पाने के लिए आप बड़े स्टेप मत लेना।
Take small step. Implement minor initiative like introducing a new product in a pilot region. Pilot region पता है सबको? मैं बता देता हूँ. Selective market. कि यहाँ पे हम अपने चीजें एक्सपीरियंस करेंगे. एक्सपीरियंस करते हैं. हाँ. मतलब आपको पता है कि इस एरिया में मेरी पकड़ अच्छी है. कस्टमर लॉयल है. अच्छी है रिस्पॉन्स. चलो इसको भी काउंट करते हैं. ओके, उसके बाद हम अगर एक बार हमने लाइक स्ट्रैटेजी बना ली, मार्केट इम्प्लीमेंट भी कर दिया. अब चीज़ें ये थोड़ी नहीं, अभी हम मॉनिटर करते हैं कितना हमने अचीव करा. आप लोग स्टडी प्लान बनाते हैं, बिल्कुल सुबह उठते हैं ये वो बस थोड़ी 1 घंटा वेस्ट करते तो टाइम टेबल बनाने में. राइट, बाकी कैसे करता है मुझे पता है नहीं करता. तो हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? वी कैन गेदर फीडबैक फ्रॉम आवर कस्टमर्स कि क्या आपके राय है सर, सही चल रहा है, किसने कुछ चेंजेस करे. ये कस्टमर नहीं मुझे ये पसंद है, ऐसा नहीं है. तो ये सब एडजस्ट एंड डिफाइन कंक्लूजन दे देते हैं. अभी चलेगा यार, चलो बाकी मेरे दोस्त खत्म करो. So to sum it up, logical incrementalism is about taking small step, well thought out step to achieve a big goal. ठीक है. It emphasizes learning, adopting things as you move forward. What is the great strategy or retaining stone? इसका मतलब है कि कोई स्ट्रैटेजी पत्थर की लकीर नहीं होती कि आप एक बार लिख दिया तो भाई ऐसे ही चलने का तो चलेगा नहीं यार. मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, चीज़ें इवॉल्व होती है. आज गामा है, कल कुछ और होगा. आज आपकी है, कल किसी और की. ठीक है, तो ये चीज़ें इवॉल्व होती है. हम लोग अपने स्ट्रैटेजी को ऐसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए और उससे अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए. सो नहीं रुको इसको बजाने की बहुत जल्दी है. बहुत तेज मार रहे हो तुम. बोलो तो अंदर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. मेरे को फोन लगा दिया. फोन लगा. अरे स्टेथोस्कोप तो हटा दो भैया. अरे सुनने नहीं चाहता. ओके गाइस, मैं टॉपिक ही सुन रहा था. सर दूसरों की बात कर लिया ना, गुस्सा आ गया ये. I hope this theory of so ladies and gentlemen, एक मिनट और दे दो. ठीक है, इतना झेल लिया मुझे बहुत. भाई सर इसका आप जेंडर चेंज चेक करो सर. यही करना है भाई. क्या कंक्लूड करना सर ब्रेक दे दीजिए. I hope you like this. I hope this theory will inspire you to बता दो अभी दोबारा लिख दोबारा स्लाइड मत चलाना बस. हम लोग को कैसा है. So I hope this theory will inspire you to attract your I hope this theory inspire you to approach your challenges and approach your challenges and opportunities. Yeah. Step by step manner. Whether you are building a great business
or climbing a career ladder, or any personal goals. Success is not about a big leaps. Leaps का मतलब पता है? बता दो जिसकी इंग्लिश कमजोर है जैसे इसकी। Leaps मतलब changes, big leaps मतलब बड़े changes, बड़े बदलाव। So success is not about the big leaps. It is about a consistent small step in the right direction. So thank you everyone. If anybody have any question, please don't ask. टॉपिक सर ने ही दिया था, मतलब अपना निकालिए। किसी को समझ में आया कि सब कुछ समझ में आ गया? तो बेसिकली कमेंटिंग छोड़ो, serious point, अगर किसी for my personal feedback, मैं यार चुप हो यार, सेंस ऑफ ह्यूमर तो बेसिकली मैं for my personal feedback, मैं सबको इनवाइट करता हूँ, प्लीज आप अपने राय दीजिए on my body language, on my facial expression, the way I am moving there, the way I am talking. Please don't, please आप बोलो, मैं बिल्कुल